Good morning students, myself B.H. Chauhan from Indo-Bharat International Public School. Now continue my class after winter break. Class 9th, chapter number 13, surface areas and volumes. Now discuss about the three-dimensional figure. These all the figures are three-dimensional, means there are length, breadth and heights are given, but this board is the two-dimensional, but discuss about the three-dimensional figure in this board. Book आप देख रहे हो. First we discuss about the cuboid and cube. Now see the cuboid. Now it is the cuboid. This book in the form of cuboid. It is the length, it is the breadth and it is the height. Length, breadth and height, these are the three-dimensional. So today we discuss about the only find the areas of this cuboid. So how can we find out the area of the cuboid? You know about the area of the rectangle, length into breadth. So there are how many? First find the total number of faces. First and 2, 3 and 4, 5 and 6. So there are total 6 faces are given. So find the area of the each face. Now what is the area of this face? Length and breadth, L into B. So L into B. Area of this face and area of this face both are equal. So we multiply by 2. Now plus, find the area of this face and also area of this space. So now what is the area of this space? Area of this space is, it is also rectangle, B into L into B, but this length is the B and it is the H. So B into H. So B into H. Area of this face and area of this face both are equal, so multiply by 2. Now last finally find the area of this one. It is the area of L into H. L into H and also L into H. So 2 H into L. H into L, L into H both are equal. So take the 2 is the common and LB plus BH and BH. So it is the total surface area of this cuboid. Students, total surface area of this cuboid we can find using the formula of the rectangle. And now cube means all sides are equal, means all edges are equal. L equal to, in this cube, L equal to B equal to H. Now all are equal to, let A. A is the edge of this cube. Length, it is breadth and it is height R. So first we write the total surface area. So what is the total surface area? TSA, total surface area is, twice we take the 2 is the common, L into B, LB plus BH and plus HL. ये लर्न करने के लिए. और यहाँ पर A है, अगर अपन इन A को इक्वल कर रहे हैं तो राइट द, इट इज द A into A square, A into A square and A into A square, because all are equal. 2 into A square plus A square plus A square is 3A square. 3 into 2, 6A square. So finally, what is the total surface area of cube? So total surface area of cube is 6A square. And also find the lateral surface area. Now what is the lateral surface? Lateral surface area means, now this time only find the area of this part. Now top and this bottom is not find out, only this one. So area of this one is L into H and L into H, and also B into H and B into H. So we can find L into H is the 2 times and B into H is the 2 times. We take the 2 is common and H is the common, so L plus B. It is there.
lateral surface area. This is the called the lateral surface, and now this lateral surface area is given by right in the form of twice L plus B and into H. And here lateral surface area is given by, suppose we write 2, it is the A, and it is A plus A. 2 into A plus A is 2A. 2 into 2 is 4, A into A is A square, so is equal to 4A square. आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले के बेसिस पर हम यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. नाउ दिस टोटल पार्ट इज द गिवन इन द बेस्ड ऑन फॉर्मूला, और ये पूरा चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस होल फॉर्मूलाज आर आल्सो यूज इन द 10th क्लास. तो ये प्लीज़ यहाँ पे आप ध्यान रखें और फॉर्मूलेस को आप याद रखें. क्यूबिड में आपको यहाँ पर एक मैंने एक फिगर भी बनाया है क्यूब और क्यूबॉइड के लिए. तो क्यूबॉइड के लिए फॉर्मूला बनाना है तो आप इस तरह से बना सकते हैं. दिस पार्ट 1 1 1 1 इट इज़ द क्यूबॉइड एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, इट इज़ द क्यूब. यहाँ पर हम ले सकते हैं इट इज़ द लेंथ, इट इज़ द ब्रेड, इट इज़ द हाइट. और यहाँ ऑल एजेस आर इक्वल मीन्स लेंथ ब्रेड हाइट आर इक्वल. तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ अभी तो टोटल सरफेस एंड लेटरल सरफेस एरिया. बॉटम और टॉप के लिए अलग से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, एंड लेटरल सरफेस एरिया गिवन इज 2 bracket L plus B into H, and total surface area of cube is 6A square and lateral surface area of cube is 4A square. प्रैक्टिकली मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पर क्या है, और कुछ क्वेश्चंस के अगर अपन साथ में चलें तो क्वेश्चन कैसे करने हैं. एक्सरसाइज नंबर 13.1 एक्सरसाइज में यहाँ पे लेके चल रहा हूँ. 13.1 सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. Question number first is plastic box 1.5 meter long, 1.25 meter wide and 65 centimeter deep is to made. Means one plastic box is given and it is the open at the top. Now ignoring the thickness of the plastic sheet, now determine the area of this sheet required for making the box and the cost of this sheet for it. If a sheet measuring 1 meter square cost is ₹20. यहाँ पे दो पार्ट आपसे पूछे गए हैं. तो सबसे पहले अपन फाइंड आउट करते हैं टोटल जहाँ प्लास्टिक यूज़ हो रहा है. यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखें, ऊपर से ये ओपन है, इसका मीनिंग क्या हुआ. आपको पहले एक काम करते हैं, या तो टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं और टॉप का एरिया अपन माइनस कर सकते हैं, या अपन एक काम करते हैं लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करके अपन उसमें बॉटम का एरिया प्लस कर दो. दोनों में से कैसी भी आप बेसिस पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं. सो फर्स्ट राइट करने का तरीका बता रहा हूँ. L इक्वल टू 1.5 मीटर, ब्रेड्थ 1.25 मीटर एंड हाइट 0.65 मीटर. अगर अपन मीटर में ले रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि 65 सेंटीमीटर है तो सभी को अपन मीटर्स में अपन कन्वर्ट कर रहे हैं. पॉइंट में अगर अपन नहीं लेना चाहे तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर इसको 150 सेंटीमीटर लिखें और इजिकल टू 125 सेंटीमीटर, और ये ऑलरेडी 65 सेंटीमीटर आपको गिवन है. तो नाउ फर्स्ट फाइंड आउट द टोटल सरफेस एरिया is equal to twice 150 into 125. चाहे तो पहले फॉर्मूला लिख लें, TSA is equal to 2LB plus BH plus HL, एंड इसमें से माइनस कर लें आप एरिया ऑफ टॉप. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. 125 into 65 एंड प्लस 65 into 150 and minus area of top L into B, और L into B means 150 into 125. इसको आप सॉल्व कर लीजिए. अब यहाँ कैलकुलेशंस हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर. कैलकुलेशंस आपको करनी है. मेन कैलकुलेशन के बेसिस पर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है. 150 मल्टीप्लाई टू 125
and 125 into 65 and 65 into 150. जो भी यहाँ पे आंसर आता है, x सपोज x आ रहा है 150 and 125, इट इज द y. आपको कुछ नहीं करना है, 2x and minus y. यहाँ पे सपोज यह आंसर आ गया z मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर. कॉस्ट आपको गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर मीटर स्क्वायर के बेसिस पे. तो हम क्या करेंगे, z सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर में है तो 200 से आप यहाँ करेंगे तो ये आपके पास में जो भी होगा यहाँ पे ये p मीटर स्क्वायर आ जाएगा. और फाइनली कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए p मीटर स्क्वायर इज मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट गिवन है ₹20. मैं ₹20 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये आपके पास आंसर आ जाएगा. अब यहाँ कैलकुलेशंस में थोड़ा टाइम लगेगा. नेक्स्ट टाइम मैं कैलकुलेटर लेके बैठूंगा ताकि कैलकुलेटर से थोड़ा इजी हो जाएगा, ताकि आपको मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके बता दूं. अभी इनको मल्टीप्लाई करना, उसके लिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइम जो है वो एक्सपेंड होगा. तो मैं यहाँ पे मैं इस क्वेश्चंस को यहीं पे छोड़ रहा हूँ. बाकी आप समझ ही गए होंगे, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट सी द क्वेश्चन नंबर 'नंबर्स जो हैं, एक बार क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जहाँ नंबर इजी गिवन है. नाउ द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 meter. Length is 5 meter and breadth is 4 meter and height is 3 meter respectively. Find the cost of whitewashing the wall of a room and the ceiling at the rate of rupees 1 meter square. Cost is rupees 7.50. ये आपको कॉस्ट गिवन है. तो यहाँ पर एक काम करते हैं, आपको फाइंड आउट करना है कि कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग एंड सीलिंग. बॉटम पे आपको फाइंड आउट नहीं करना है, तो एक काम करते हैं, सेम वही चीज है. तो चलिए फर्स्ट फाइंड द लेटर सरफेस एरिया. व्हाट इज द लेटर सरफेस एरिया? लेटर सरफेस एरिया 2l + b × h प्लस एरिया ऑफ सीलिंग l × b, क्योंकि यहाँ पे सीलिंग का एरिया फाइंड कर रहा है तो यहाँ पे l × b करना है, l × b. तो नाउ व्हाट इज द आंसर? l इज द 5 and b इज द 4 and into h इज 3 प्लस l × b 5 × 4. इसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं. 2 × 5 + 4 is 9 and 9 × 3 and plus 5 × 4 20. Now 9 × 2 18 and 18 × 3 इसको मल्टीप्लाई कर दिए. 18 × 3 9 × 8 is the 24 and 2 3 × 1 and 3 + 2 is the 5 54. 54 + 20 is equal to 54 और इसको आप ऐड कर लीजिए. 4 5 + 2 7 74 मीटर स्क्वायर. ये मीटर स्क्वायर में, मीटर आप बाद में लिख सकते हैं. 74 मीटर स्क्वायर इज द टोटल एरिया. सो फाइनली टोटल कॉस्ट ऑफ कॉस्ट किसकी फाइंड आउट करनी है आपको? यहाँ पे वाइट वॉशिंग की. तो आप लिख लीजिए टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इज इक्वल टू 74 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट आपको गिवन है 1 मीटर स्क्वायर. कॉस्ट इज ₹7.50. 7.50 इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर लो. यहाँ से अपन इसको कैंसिल, थोड़ा सा इजीली अगर अपन इसको सॉल्व करें तो ये 0 हो गया आपका. और 75 और 10, और ये 10 आपका गया 5 टाइम्स और 2 की टेबल से, और ये 6 इज 3 टाइम्स एंड 7. और चाहे तो अपन 5 को 75 से कैंसिल कर सकते हैं 1 टाइम एंड 25 इज द 5. तो 37 × 15 इज इक्वल टू 37 × 15
ये आंसर आ गया आपका ₹555, ये आपका आंसर हो गया कंप्लीटली। 14 plus 1 15, carry 1 2, 3 plus 2 is 5 is correct answer। 5 into 7 ओके। थोड़ा सा कैलकुलेशन में अगर मिस्टेक हो तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर अपन ने सेकंड कंप्लीट कर दिया। तो यहाँ अपन फाइंड कर रहे हैं एरिया ऑफ कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, टोटल एरिया, क्योंकि अपन बॉटम पे अपन कलर नहीं करते हैं, वाइट वॉश नहीं करते हैं, इसलिए अपन ने यहाँ पर बेसिकली बॉटम का एरिया अपन ने कैलकुलेट नहीं किया है। ये एक्सरसाइज 13.1 मुझे लगता है आप लोग अपने आप कर सकते हैं, फिर भी एक बार देख लेते हैं। इसमें देख लो एक बार क्वेश्चंस 5% टोटल। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लें, एक बार अपने आप करना। क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ये एक बार अपने आप ट्राई कर लीजिएगा। और उसके बाद में अपन आते हैं सिलेंडर को अपन बाद में डिस्कस करेंगे। अभी मैं क्यूब का एक क्वेश्चन अपन ले लेते हैं। See the example number 2. Example number 2 is given. Now the Hamid has built a cubical water tank with the light for his house, which each outer edge is edge is given 1.5 meter long. Now he get outer surface of the tank excluding the base covered with square tiles of side 25 centimeter. Find how much he would spend for the tiles if the cost of the tiles is ₹360 per dozen। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर टाइल्स जो हैं वो टाइल्स कहाँ यूज़ करेंगे, टाइल्स अपन जो यूज़ करेंगे वो अपन बेस पर, तो अपन यहाँ पर वो यूज़ कर रहे हैं। ही गेट द आउटर सरफेस ऑफ द टैंक एक्सक्लूडिंग द बेस। तो नाउ एज ऑफ द क्यूबिकल इज गिवन, सरफेस एरिया अपन फाइंड कर लेते हैं। टोटल एरिया हो जाएगा इसका, द नंबर ऑफ द टाइल्स, सरफेस एरिया ऑफ द टाइल्स, कॉस्ट ऑफ द 1 दर्जन इज गिवन। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ इज इक्वल टू 150 एंड टाइल भी स्क्वायर क्यूबिकल शेप में है, तो 25 इंटू 25 इक्वल टू सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टाइल 1 दर्जन का कॉस्ट जो आपको गिवन है, तो 1 दर्जन का आप फाइंड कर लो पहले। सरफेस एरिया ऑफ टैंक अपॉन एरिया ऑफ द ईच टाइल डिवाइड कर लो। डिवाइड करने के बाद में 180 नंबर ऑफ टाइल्स आ जाएगा। और 1 दर्जन टाइल का कॉस्ट है 1 दर्जन टाइल्स जो हैं वो कॉस्ट ऑफ 12 टाइल ₹360 हैं। तो 360 को 12 से डिवाइड कर लो तो रुपीज़ आ जाएगा 30 को 180 से मल्टीप्लाई कर लो तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी ₹5400। ये एग्जाम्पल नंबर 2 है जो मैंने ऑरली इसमें डिस्कस किया है, तो ये आप लोग कर लेना। क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.1 ये मैं आपको एक तरह से होमवर्क में दे रहा हूँ। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, इसको कर लेना। कोई भी डाउट हो इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 to 8, 1 और 2 तो मैंने आपको डिस्कस कर ही दिए हैं। केवल 8 क्वेश्चंस इसमें गिवन है और 8 क्वेश्चंस में से अगर कोई आपको प्रॉब्लम हो, और फिर एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज, एनी डाउट यू कैन आस्क। डाउट्स आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ में। व्हाट्सएप नंबर आपको मालूम ही है, व्हाट्सएप पे आप एक्सरसाइज नंबर और क्वेश्चन का नंबर आप पूछ सकते हैं। अभी तक आप पूछ नहीं रहे हो तो मैं आपसे ये शिकायत करूंगा, इसीलिए मैं अब आपको ये थोड़ा सा हर क्वेश्चन में सॉल्व नहीं करवाऊंगा। आप पूछोगे तो ही मैं आपको डिस्कस करूंगा। अभी तक मैं एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए आ रहा हूँ, एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए आ रहा हूँ। तो प्लीज़
जहाँ तक हो सके अपने आप सॉल्व करें। ये चैप्टर पूरा एक फॉर्मूले के बेसिस पर है, फॉर्मूला अगर याद है तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, करते हैं इसको कंटिन्यू। 13.2 एक्सरसाइज अपन कल डिस्कस करेंगे सिलेंडर के साथ में। नाउ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।